سے الگ ہے، سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ جمعرات کی شام پیش قدم کے ساتھ میں سہیل بٹ اور میں اقرا صدیق۔ ہمارے آج کی شمارے میں میلہ کھیر بھوانی میں باہمی بھائی چارے کے مناظر، نمستے پربھو پاد دیوے، طلبہ کے لیے لائبریری کی اہمیت، یہ لائبریری جو ہے یہ سینٹر ایک ہے، اور جانتے ہیں کشمیری دستکاری سے متعلق نوجوانوں کا نقطہ نظر۔ اگر ہمیں باہر کا شال ہے اس میں ہمارا ٹیگ لگایا جاتا ہے۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ ریاست جموں و کشمیر آپسی بھائی چارے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد کے لیے دنیا بھر میں مقبول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے منتقلی کے بعد بھی کشمیری پنڈت اپنے آبائی وطن واپس لوٹنا چاہتے۔ اسی سلسلے میں پیش ہے عارف بشیر کی یہ رپورٹ۔ نمستے پربھو پاد دیوے، نام سنکیرتن سری نگر سے 22 میل کی دوری پر واقع یہ ہے تلمل گاؤں، جہاں قائم راگنیا دیوی کا مندر خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ چنار کے درختوں کے بیچوں بیچ واقع یہ مندر ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بھکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پیر کے روز یہاں پر آپسی بھائی چارے، مذہبی رواداری اور جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ کم از کم 40,000 مقامی اور مائیگرنٹ کشمیری پنڈتوں نے سالانہ میلہ کھیر بھوانی میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ صبح سے ہی یہاں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا تھا اور بھکتوں نے کشمیر میں امن و امان کی دعائیں کی۔ شانتی گژھِ روزٕنۍ، یُس بھایی چارہ گژھِ روزُن، یُس کٔشیٖر سٲنۍ مٲج کٔشیٖر چھِ یہِ گژھِ بیٚیہِ تِتھَے پٲٹھۍ پھۄلٕنۍ تہِ پھوٗلٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ یہِ ٲسۍ پھۄلان تہِ پھوٗلان۔ نظر چھِ لگان، سۄ چھِ لگان مگر کینٛہہ کالس۔ وۄنۍ چھُ یہِ دۄنوٕنی طرفن، مُسلمانس تہِ بٹس دۄنوٕنی چھِ یہِ برابر۔ وۄنۍ دۄنوٕنی چھِ برابر یہِ اپرچُنِٹی تہِ أسۍ وَنو تہٕ بیٚیہِ چھکھ ذمہٕ دٲری تہِ کہِ دۄنوَے اِکوَٹَے میٖلِتھ کٔرِو بیٚیہِ یہِ بحال کٔشیٖر، یہِ مٲج کٔشیٖر گژھِ ہے بیٚیہِ بحال، یہِ مٲج کٔشیٖر گژھِ ہے بیٚیہِ بحال۔ میلے کے دوران جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے، کیونکہ یہاں آئے کشمیری پنڈت برسوں کے بعد ایک دوسرے سے ملے اور مقامی مسلمانوں کے گھروں میں رات گزاری۔ مسلمانوں کی مہمان نوازی دیکھ کر کشمیری پنڈت اشک بار ہوئے۔ اس موقع پر کئی پنڈتوں نے گھر واپسی کی تمنا ظاہر کی۔ واریاہ وُہہِ ؤری زوٚوِ ؤری پتہٕ یور چھِنہٕ آمٕتۍ، تِم چھِ ییٚمہِ یُس ییٚتہِ پروگرام چھُ تَمہِ کِنۍ چھِ تِم پننٮ۪ن گرن تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ۔ تِم چھِ تِم پنٕنۍ نظر گرن کُن تہِ ماران کہِ أسۍ وٕچھو سٲنِس گرس یہِ ترٛایو اَسہِ 22 ؤری برٛونٛہہ اَتہِ کیٛاہ چھِ حالات۔ سُہ چھُ ییٚمہِ تھرٛوٗ تہِ تِمن یِوان۔ بیٚیہِ چھِ تِم پننہِ پننہِ گامن ہٕنٛدۍ یِمن مُسلمان چھِ بٲے بٹن، تِم تہِ چھِ تِمن میلنہٕ خٲطرٕ یور دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ الگ الگ ڈسٹرکن پٮ۪ٹھ یور۔ ایک کشمیری پنڈتائن جو جموں میں ایک مہاجر کی زندگی گزار رہی ہے نے کہا کہ وہ کبھی بھی پلوامہ میں واقع اپنے آبائی گھر کو نہیں بھلا پائے گی اور نہ ہی کشمیریوں کے اس بھائی چارے کو۔ برادری ونکین تہندی خاطر یوان ہے ولسا تمس وچ ہے تت روز پلوامے ون خبر کیا دلیل ون سن برادر چھ وارے پنہ گام کھو تت ما اچن ہو تلا اتن خبرات فونس پہ کیا ساری چھ گام جیمی وچان اتن پتھ سن گوم شامس پہ ون بہ خاص طور پر چھس بہ تمہ سات خوش گھان یم سات زن دج گنت زنان موہر چھسن وچان یہ سو ساڑِ پاڑِ وہ پسند نہیں ہے مجھے اس ٹائم کی دجی پسند۔ یہ بون شہجار ام سی بدنک اخ اوزار گھن یت ونان دپان امس کن دور ژلیا تمس ونان کشید اس وۄنۍ ییٚتہِ درٛاو سُہ گوٚو دادٮ۪ن منٛز مُبتلا۔ یس کتھ باتھ مےٚ ژےٚ سۭتۍ تسلیہ یی کرنہٕ سۄ ما کر بہٕ تۄہہِ۔ أتی چھُ وٕنکٮ۪ن گٮ۪وَن وٲلۍ أتی چھُ سروٗدا یِوان، ییٚتہِ چھِ نیران خانٛدر چھِ کران أسۍ تتہِ یورٕکی چھِ ڈِمانڈ گٮ۪وَن وٲلۍ چھِ یورٕکی واتان۔
वाज़ा रहे कि माता खीर भवानी का मंदिर डोगरा हुकूमत के दौरान कायम किया गया है। मंदिर के चारों ओर छोटी छोटी नहरें बह रही हैं, जबकि एक बड़ी सी नहर मंदिर के अहाते से बहती है, जहां पर सालाना मेले के रोज भक्त मजहबी डुबकी लेते हैं। प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन। ये बात सही है कि कश्मीरियत का अहम जुज आपसी भाईचारा है। यहाँ पर मुख्तलिफ अकायद और सकाफतों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को त्योहारों पर मुबारकबादी पेश करते हैं, और ये बाहमी ताल्लुकात माशरे को मजबूत बनाते हैं और कौमों की यकसां तरक्की के बाइस भी बनते हैं। वादी कश्मीर को पिरवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई बुजुर्गों, औलियाओं और गन्मातों ने जन्म लिया और इन सूफी बुजुर्गों के नाम पर यहाँ कई दरगाहें और खानकाहें मौजूद हैं, जहाँ हर रोज अकीदतमंदों का तांता बंदा रहता है। आज हम आपको हजरत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के सूफियाना कारनामों से उजागर करेंगे। वादी कश्मीर जो कि इब्तिदा से ही बुजुर्गों, औलियाओं और दरवेशों का मरकज रहा है। यहाँ कई बुजुर्गों ने जन्म लिया। इसके अलावा कई बुजुर्गों ने अपने वतन को छोड़कर कश्मीर में इस्लाम की तालीम आम की। सबसे पहले 13वीं सदी ईस्वी में मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ईरान से कश्मीर आए और सईद बुलबुल शाह के साथ यहाँ घर घर इस्लाम की तालीम पहुँचाने के फर्ज अंजाम दिए और उसी वक्त से सूफी दौर का आगाज शुरू हुआ। ये सिलसिला फिर शेखुल आलम ज़ैनुद्दीन वली, बाबा भामुद्दीन, बाबा पयामुद्दीन ऋषि ने आगे बढ़ाया। कश्मीर में इनके इश्तराक से कई मस्जिदों और खानकाहों की तामीर हुई और कश्मीर में इस्लाम का बोलबाला हुआ। मुबारक वनान पयामुद्दीन रहमतुल्लाह, यानी दीनु पैगाम आनन वोल, दीनु पैगाम आनन वोल। युस ये दीन हक यथ पे अमल कर तो अल्लाह ताला दिस दुनियाई बादशाही सिनक तय तो अल्लाह ताला साथ खुदा स्वरूप तो अल्लाह ताला कोर इन सह बादशाही अता युस कयामत तामत बराबर रोज। लिहाजा इहुंद आम लूकन कि दुनिया चलो दुनिया खतर करू तुतु ये दुनिया मज जरूरत छो, मगर आखरत खतर करू तूत ये आखरत मज जरूरत छो। क्या दुनियाई जिंदगी आर्जी यह कमे कलील, मगर आखरत जिंदगी मरने पत दुबार मरने पत अता सपदान सह बेशुमार। लिहाजा तमिक थो ख्याल क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अद दुनिया मज़रतुल आखिरत, दुनिया आखरत ज़िराअत तो ये करू आखरत खतर तैयारी, दुनिया खतर कमो तुतु ये दुनिया मज लगो, मगर आखरत खतर कमो तूत ये आखरत मज लगो। तो अमुक इशारा यह कि आखरत। बाबा पयामुद्दीन ऋषि जो कि बाबा ऋषि के नाम से भी याद किए जाते हैं, उनको रूहानियत और गहरे इल्म का खजाना तस्वुर किया जाता है। उन्होंने दुनियावी जिंदगी को तर्क करके जिंदगी का हर पहल खुदा की फिक्र में गुजारना पसंद किया और कश्मीर में जगह जगह गाँव जाकर एक खुदा होने का दर्स लोगों को दिया। उनकी पैदाइश चंद्रनाव गाँव में 1411 ईस्वी को हुई। बाबा पयामुद्दीन ऋषि 1480 ईस्वी में इस दुनिया से रहलत कर गए। इनका आस्थान आलिया टंगमर्ग से 3 किलोमीटर दूर एक गांव में वाक़या है, जहां हर साल हजारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं। मगर तकरीबन कुछ सात 10,000 पेटी 10,000 कम 10,000 पेटी तो रत कालस मज सोरे एरिया जायन सर तो ये पे वनस टूरिस्ट तसान गुलमर्ग टूरिस्ट तम तन रत कालस मज वातान योर वातान। सामईन लाइब्रेरिया अवामी तालीम के ज़रिए के तौर पर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की अहमियत से सिर्फ एक कदम पीछे है। एक लाइब्रेरी में हर किस्म की किताबें होती है। एक जदीद लाइब्रेरी में आमतौर पर किताबों के साथ साथ तमाम अहम अखबारात और जराइद का होना ज़रूरी है। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के चीफ लाइब्रेरियन प्रोफेसर वजी अलवी से। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत खैर मुकदम है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे लाइब्रेरी के बारे में मुख्तसरन जानना चाहेंगे। मुझे खुशी है कि आपके दरमियान बैठ के आज इस यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अहम तरीन शोबे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी जो है ये सेंटर एक है जिसमें हम किताबें, जरीदे वगैरह
जो प्रिंट ऑन पेपर मटेरियल्स हैं उनको हम खरीदते हैं या कहीं डोनेट करके ले आते हैं। जानना चाहेंगे कि इस वक्त हमारी लाइब्रेरी में कितने तरह की इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल हैं? देखिए हमारे यहाँ एक तो प्रिंट ऑन पेपर जो ट्रेडिशनल है तो किताबें हैं, कोई 20,000 के करीब किताबें हैं। 100 के करीब हम कौमी और बैनुल अक़वामी जरीदे खरीदते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं जिसमें कोई 9,000 के करीब जरीदे हैं, उनको हम एक्सेस देते हैं यहाँ से। इसके अलावा वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर जितना भी मटेरियल है उसको एक्सेस देते हैं। और इसके अलावा सबसे अहम एक कलेक्शन हमारे यहाँ जो है वो है अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके यहाँ जो लेक्चर्स होते हैं हमने उनको ला के रखा है, तो अपने यहाँ लोड करके रखा है, स्टूडेंट्स उनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल एनहांसमेंट ऑफ थ्रू टेक्नोलॉजी NPTEL के प्रोग्राम जो हैं, IITs के प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बारे में, उनके वो कोर्स वेयर जो हैं वो भी हमने अपने यहाँ अवेलेबल रखे हैं। स्टूडेंट्स का रुझान ज्यादा किस तरफ है, ट्रेडिशनल बुक्स की तरफ या ई बुक रीडिंग की तरफ ज्यादा रुझान है इनका? मेरे ख्याल में 50-50 जी। हमें खुशी होती है स्टूडेंट्स को जब हम देखते हैं ब्राउजिंग में एक्सेसिंग द मटेरियल्स, लेकिन स्टूडेंट्स किताब भी पढ़ना चाहते हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लोग कहते हैं भाई किताब और वो आजकल का ये जो है, मेरे सामने तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं। हमारी तहजीब में किताब सिर्फ 500 साल से है। 500 साल पहले क्या था हमारे यहाँ? क्ले टेबलेट्स थी, बाकी सब चीजें थी, पार्चमेंट था। किताब बाद में 15th सेंचुरी में आ गई, लेकिन किताब ने उन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया। क्या यहाँ पर कुछ कहेंगे कि नेट इंटरनेट जो है वो थोड़ा बुक्स को रिप्लेस करने जा रहा है? मुश्किल है, अभी मुश्किल है, अभी टेक्नोलॉजी को कुछ और आगे बढ़ना है। तो आपसे हम एक छोटा सा मैसेज चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के हवाले से, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें? देखिए, मैं कई सारे मुल्कों में रहा हूँ, पढ़ाया है मैंने। हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ एक सेंटेंस में बात बताता हूँ, दोज हु रीड लीड द वर्ल्ड। एक लाइब्रेरी की सबसे बेहतरीन खसूसियत ये है कि ये क़ारीन पर कोई चार्ज नहीं करती। या तो फिर किताबें, मैगज़ीन और अखबारात दस्तयाब बनाने के लिए एक रुकनियत फ़ीस जमा करनी पड़ती है, जो कि ना के बराबर होती है, और ये रीडर्स के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले जानते हैं कश्मीरी दस्तकारी के बारे में नौजवानों का नुक्ते नज़र। क्योंकि कश्मीरी दस्तकारी को एक अहम मकाम हासिल है। यहाँ के दस्तकारों की मसनूआत उनकी शानदार और मुनफरिद डिज़ाइंस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर के ऊनी और पश्मीना कालीन मयार और डिज़ाइंस के लिहाज से बेमिसाल है। क्रिवल, पश्मीना शॉल, नीडल वर्क वाले शॉल, रफल शॉल, कानी शॉल, वुड कार्विंग और पेपर माशी के मसनूआत कश्मीर के कुछ रिवायती दस्तकारियां हैं। लेकिन मार्केट में मौजूद जाली हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को कश्मीरी ब्रांड के तहत फरोख्त किया जा रहा है, जिसके सबब कश्मीरी दस्तकारी का वजूद खत्म होता नजर आ रहा है। बड़ मशहूर हैंडीक्राफ्टन खतर शाल वगैरह आइटम बनाने, वुडन आइटम वगैरह, वार वार हेतुन यह सोरे मकलुन। ये लूक द्रामत नवें टेक्नोलॉजी कुन गमत। हैंडीक्राफ्ट्स में पहले हम देख सकते हैं शॉल्स हमारे हैं, पेपर मैशी है, जरदोजी काम है, मगर इनमें आजकल मतलब डिक्लाइन हो रहा है काफ़ी ये, क्योंकि इसमें हम इम्प्योरिटी मतलब कर रहे हैं। टीम आजकल नौजवान गमत टेक्नोलॉजी पे MBA अत खतर सनान कि हैंडीक्राफ्ट्स खतर कुछ पकना ब्रोट। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपनी राय से जरूर नवाजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam peshkadam@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज पेशकदम रेडियो क्लब ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। सुहेल भट्ट, रासिद्दीक और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा,
قدم